বোর্ডের নির্দেশে কেকেআর থেকে বাদ মুস্তাফিজুর বাদ পড়ার পর মুখ খুললেন বাংলাদেশি পেসার। বাদ পড়লে আর কি বা করার আছে বলে তার মন্তব্য। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া হয়েছে বিসিসিআই এর তরফ থেকে। ইতিমধ্যে কালকেই জানানো হয়েছিল, আমরা দেখেছিলাম যে এরপর আইপিএল খেলতে পারবেন না মুস্তাফিজুর। তার পরবর্তীতে এবার তার প্রতিক্রিয়া সামনে এলো। ठीक एक महीना पहले बांग्लादेश की टीम ने इनकार कर दिया है ऑफिशियल कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया और आईसीसी को ये क्लियर कर दिया कि भाई हमारे जितने भी मुकाबले हैं वो हिंदुस्तान में नहीं श्रीलंका में करवाए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है और ये कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हम खेलेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच लकीरें खिंच गई हैं और मामला आईसीसी तक पहुंच गया है? तो देखिए इसका जो আসসালামু আলাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান রিएक्शन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने से साफ इनकार कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी और आपको ये भी बताएं कि इसके ऊपर जो इंडियन मीडिया है, वेस्ट बंगाल मीडिया है, वो काफ़ी एंग्री उनका रिएक्शन है और इसको लेकर के कुछ मीडिया सेल तो इंडिया के इस फैसले को बुरी नज़र से देख रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। किस तरह से बांग्लादेश विद गट्स, यानी बांग्लादेश इस वक्त बड़ी हिम्मत दिखा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश ने ये जो फैसला लिया है कि भाई हम अब हिंदुस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि हम श्रीलंका में अपने T20 मैचेस खेलेंगे। ये रिक्वेस्ट भी की है आईसीसी से इसको लेकर। अच्छा, ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड বোর্ডের নির্দেশে কেকেআর থেকে বাদ মুস্তাফিজুর বাদ পড়ার পর মুখ খুললেন বাংলাদেশি পেসার। বাদ পড়লে আর কি বা করার আছে বলে তার মন্তব্য। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া হয়েছে বিসিসিআই এর তরফ থেকে। ইতিমধ্যে কালকেই জানানো হয়েছিল, আমরা দেখেছিলাম যে এরপর আইপিএল খেলতে পারবেন না মুস্তাফিজুর। তার পরবর্তীতে এবার তার প্রতিক্রিয়া সামনে এলো। আর বিস্তারিত জানবো এই সম্পর্কে ফোন লাইনে রয়েছেন ডিজিটাল হেড অর্পণ ঘোষ। অর্পণদা, কি জানতে পারা যাচ্ছে এই বিষয়ে? মুস্তাফিজুরের কি প্রতিক্রিয়া? দেখো স্বর্ণালী, গতকালই ভারতীয় বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কেকেআরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে রাখা যাবে না, তাকে বাদ দিয়েই বাকি দল সাজাতে হবে। এবং 25 জন যে ক্রিকেটার থাকার কথা তার মধ্যে মুস্তাফিজুরকে বাদ দিলে 24 জন ক্রিকেটার হবে। এবং যে কোনো ভাবে একজন যে ক্রিকেটার রয়েছে তারা ওই 9 কোটি 20 লক্ষ টাকায়, যে টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে কেনা হয়েছিল সেই টাকার মধ্যেই অন্য কোনো ক্রিকেটারকে তারা কিনে নিতে পারে। এরপরেই কিন্তু বাংলাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং বাংলাদেশ থেকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে আদৌ তারা আইপিএল দেখবে কিনা এবং আদৌ তারা T20 বিশ্বকাপে ভারতে খেলবে কিনা সে বিষয়ে কিন্তু প্রবল জল্পনা শুরু হয়। অবশেষে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে মুস্তাফিজুর রহমান একটি প্রতিক্রিয়া দেয় এবং এক লাইনে প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে তিনি লেখেন যে বাদ পড়লে আর কি বা করার আছে, অর্থাৎ পুরোটাই তিনি বোর্ডের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এবার এখানে যে প্রশ্নটা উঠছে যে বোর্ড সভাপতি তিনি জানিয়েছেন যে 2026 বিশ্বকাপ ভারতে খেলা হবে ঠিকই, এটা আইসিসি টুর্নামেন্ট, তবে ভারত আয়োজক দেশ, তাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে তারা সরাসরি আইসিসির সঙ্গে কথা বলবে। যদিও কি কথা বলবে সে বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো প্রতিক্রিয়া তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে গতকাল একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে আসিফ নজরুল, যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা ইউনূস সরকারের। তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দুটি দাবি করেছেন। দুটি দাবির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কি? আইসিসি যেন T20 বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করে, অর্থাৎ ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে এখন ক্রিকেটীয় সম্পর্ক সেটা হচ্ছে আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলা এবং নিরপেক্ষ দেশে খেলা, সেটাই চাইছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিকভাবে বারবার যে প্রশ্নটা উঠছিল যে পাকিস্তান কোনোভাবে বাংলাদেশকে উস্কাচ্ছে,
সেটা যেন এই কথার মধ্যে আরো একবার প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এছাড়াও 2026-এর আইপিএল বাংলাদেশে ব্রডকাস্টিং যেন না করা হয়। অর্থাৎ যেহেতু বাংলাদেশের একমাত্র ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান কলকাতায় খেলছিলেন, অর্থাৎ আইপিএল খেলছিলেন, তাকে যেহেতু বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে বাংলাদেশে যেন কোনোভাবেই আইপিএল ব্রডকাস্ট না হয় সেদিকটা দেখতে বলেছে। অর্থাৎ এই যে দুটো দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং উস্কানিমূলক দাবি বলেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। কারণ একাংশ তো তাই কথা বলছে, কারণ যেভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে সাপোর্ট করছে, ভারত বিরোধী করে তুলছে, এটাও কিন্তু সেই রকমই একটা পদক্ষেপ। যদিও মুস্তাফিজুরের বাদ দেওয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত এবং সেটাই বাংলাদেশে জল্পনা শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে এটা কি হয় সেটাই দেখতে হবে। এখানে দুটি বিষয় অবশ্যই নজর রাখতে হবে। কি কি বিষয়? এক, যে পরবর্তীতে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার আদৌ আইপিএল খেলবেন কিনা বা ভারত খেলাবে কিনা সেটার দিকে নজর রাখতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে যে 2026 বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ ইডেন গার্ডেন্সে বেশ কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে, সেটা খেলা কিনা নাকি নিরপেক্ষ ভেন্যুর দাবি করে সেদিকটা মাথায় রাখতে হবে। পুরোটাই কিন্তু ডিপেন্ড করছে T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर, इंडिया में खेलने से कर दिया इनकार। क्या है विवाद, जानिए पूरा मामला। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है और ठीक 1 महीना पहले बांग्लादेश की टीम ने इनकार कर दिया है ऑफिशियल कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया और आईसीसी को ये क्लियर कर दिया कि भाई हमारे जितने भी मुकाबले हैं वो हिंदुस्तान में नहीं श्रीलंका में करवाए जाएं और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है और ये कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हम खेलेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच लकीरें खिंच गई हैं और मामला आईसीसी तक पहुंच गया है? तो देखिए, इसका जो पूरा मामला है ना, ये पॉलिटिकल है, ये क्रिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सारा मामला राजनीतिक है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद या फिर उनको गिराने के बाद जब नए लोगों ने वहाँ पे यूनिस ने जब बांग्लादेश को टेक ओवर किया तो हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में पिछले 1 साल में हालात बद से बदतर होते गए और वहाँ पर दंगे हुए, आगजनी हुई और पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जी हाँ, टारगेट करके बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब बांग्लादेश में ऐसा होगा तो हिंदुस्तान में तो इसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम आईपीएल में किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलने देंगे। अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदुस्तान के हिंदू तो भाई गुस्से में होंगे, वो अपनी बात रखेंगे और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक कह दिया कि हम बांग्लादेश की टीम को हिंदुस्तान में आने ही नहीं देंगे। उसके बाद ये आईपीएल वाला मामला आया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है उनको तुरंत हटाओ वरना हम आईपीएल नहीं होने देंगे, हम केकेआर को नहीं खेलने देंगे। बीसीसीआई इस मामले में आई, बीसीसीआई ने इंटरवेन किया। बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि भाई मुस्तफिजुर को हटा दो। केकेआर ने मुस्तफिजुर जो बांग्लादेश के गेंदबाज हैं उनको हटा दिया। अब भाई आप बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को हटाओगे तो इसके ऊपर बांग्लादेश भी रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान से पूछा गया, उसने कहा भाई इस पर मैं क्या बोलूं, ठीक है निकाल दिया तो निकाल दिया। अब देखें इसके ऊपर जो बांग्लादेश की हुकूमत है या बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है वो इसके ऊपर फैसले ले रहा है। इसी तरह आपने इंडियन मीडिया की भी एक वीडियो देखी, वो किस तरह से इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, हिंदुओं की अत्याचार के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन इनसे कोई ये तो पूछ ले अंतभक्तों से कि भाई क्या ये मिनॉरिटी सेफ है हिंदुस्तान में? बताएं ना भाई, नहीं सेफ है। किस तरह से उनके ऊपर वहाँ पर हमले किए जाते हैं। यानी आप अपने घर नहीं पहले देख रहे, दूसरों के ऊपर उंगली खड़ी कर रहे हो ना। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आपने फीडबैक जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।